Hello, so in this lecture we'll be looking at the introduction to the topic atomic structure. So atomic structure topic शुरू करने के लिए the first thing that we look at is the discharge tube experiment. Discharge tube experiment में क्या होता है? Like think of it like we have a discharge tube, a flask, जिसको हम ionize करते हैं, उसको हम बहुत सारी energy देते हैं. We apply a potential difference, like a very large amount of potential difference, and is discharged to me. We'll assume that there's a gas at a very low pressure. ठीक है, तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया, कैथोड. राइट, सो दिस इज कैथोड and this is anode. So there's some gas, it could be any gas, hydrogen gas, helium gas, and we apply lots and lots of potential here. Basically we give a lot of energy to this gas through this. So इसमें observe किया जाता है that there are some kind of rays which are starting from cathode and they are going towards anode. ये कुछ rays दिखाई दी. This is an observation here, right? The first observation here is that there are some rays, right? They're going towards anode and they're starting from cathode, so I'll call them as cathode rays. ठीक है, so these rays would be called as cathode rays because they are starting from cathode. फिर इसमें एक और चीज देखी गई, that if we apply an electric or magnetic field, electric field मतलब अगर हमने ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज यहाँ रख दे, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा, नेगेटिव चार्ज रखा, तो दिस इज, आई कैन से दिस इज अ काइंड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट कि ये रेज जो है दे वर डिफ्लेक्टेड in this electric field. They were deflected to the positive charge or they were deflected away from the negative charge. तो सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड में भी ये डिफ्लेक्ट हो गए. तो मैग्नेटिक फील्ड अभी हमको उतना आइडिया नहीं है, वो 12th क्लास में पढ़ाया जाता है, बट अभी समझ लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में भी ये डिफ्लेक्ट हो गए. तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन वाज दैट दे वर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, सो दे वर डिफ्लेक्टेड and we know that, like as theory, abhi right now we learn it as a fact, only thing that can be deflected by electric field is charge. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चीज़ पे फोर्स लगा पा रहा है तो मतलब वो चीज़ चार्ज्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड कैन ओनली अप्लाई फोर्स एट चार्ज पार्टिकल इन मोशन. सो डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड मीन्स दैट दिस इज एसेंशियली चार्ज्ड. कैथोड रेज आर चार्ज्ड. और हमको ये पता है अगर किसी भी चीज़ पे फोर्स लगाया एंड उस पर एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ, बिकॉज अगर डायरेक्शन चेंज हो गई तो मतलब एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ ना. तो किसी भी चीज़ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड कोई भी चीज़ अगर फोर्स लगा रही है और एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है, सो दैट मीन्स दैट थिंग हैज मास. we'll say cathode rays have mass. So the observation here is that these cathode rays are essentially particles. Okay, so these are like particles traveling from cathode to anode. One more observation was here, which is very important observation, that these rays were independent of gas. मतलब हम ये एक्सपेरिमेंट हाइड्रोजन गैस पे करें, हीलियम गैस पे करें, it's always the same kind of rays. Like there's no change in the nature, in all the properties of this rays. हमेशा same properties देखने को मिल रही है. So इसका implication ये हुआ, अगर independent of the gas है तो हम बोलेंगे there are some particles, charged particles. और particles भी देख सकते हैं, अगर ये positive की ओर जा रहे हैं, so there are negatively charged particles, right? That are present in all gases, because हर गैस में तो same rays आ रही है. So we say that there are fundamental particles. There are fundamental particles. Fundamental means it's present in all types of gases, it's present in all types of atoms, and these fundamental particles are nothing but electrons. So this is how electrons were discovered. They were discovered by Sir J.J. Thomson. He did this experiment for the first time, so he is responsible for the discovery of electrons. So essentially cathode rays is nothing but stream of electrons, right? So इस experiment में हमने देखा, when we ionize a gas in discharge tube, there are rays starting from cathode going towards anode, the same rays every time, and since these rays are deflected by electric and magnetic field, we are saying that they are charged particles, and more so negatively charged particles. And so we are saying that these particles are present in all the atoms and they are known as electrons.
ठीक है. So I hope this is clear. So moving on. So this experiment was actually repeated, and the same experiment was done again, but this time slightly differently. This time what we ended up doing was we ended up using perforated cathode. Perforated cathode is something like this. A cathode which has too many openings, right? बहुत सारी openings है, ठीक है. So now we are using instead of simple cathode, what we are using is perforated cathode, ठीक है. A cathode which has openings, right? It's not a simple cathode. And when this was done, ठीक है, I'll do one thing. I'll get rid of this whatever we wrote about cathode rays, whatever important things we had about cathode rays, इसको हटा देते हैं, and let's focus on anode rays, or let's focus on कि अब क्या होगा. So as we saw in this case, when perforated cathode was used, we saw in addition to cathode rays अभी भी होंगी, in addition to cathode rays we saw some other rays. They were starting from anode, so naturally I'll call them anode rays, right? So I'll call them anode rays. So these rays are only visible whenever we use cathode rays. So these rays will say कि ये इन openings, इन canals के through जा रहे हैं. तो anode rays are also known as canal rays. Reason being because they travel through these canals. तो इसमें जो हमने ऑब्जर्व किया, couple of things. देखिए पॉजिटिव से जा रहा है टुवर्ड्स नेगेटिव जा रहा है, और इसमें हम ऐसा कह सकते हैं अगर हमने इस पे भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो ये भी डिफ्लेक्ट हो रहा था. और ये डिफ्लेक्ट कैसे हो रहा था, कुछ ऐसे हो रहा था. दे वर गोइंग टुवर्ड्स नेगेटिव, दे वर गोइंग अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव. सो उसका मतलब हम ये कह सकते हैं, बेस्ड ऑन दिस वी कैन से एनोड रेज जो है अनलाइक कैथोड रेज दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, राइट. जस्ट लाइक कैथोड रेज के केस में कहा, वैसे हम एनोड रेज के केस में कहेंगे. तब हमने नेगेटिव चार्ज का, अभी हम कहेंगे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है. क्यों? बिकॉज दे आर गोइंग टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज. एंड वो पूरा डिस्कशन वैलिड है बिकॉज दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. दैट मीन्स दे हैव सम चार्ज and that means they have some mass as well. So these are not just rays, these are positively charged particles. एक बहुत important observation है यहाँ, because that's different from the cathode rays observation, that this is dependent on gas. Like every time we change the gas, we have a different type of an anode rays, and we saw that this is lightest. ठीक है, एनोड रेज का जो मास होता है इन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स का जो मास होता है दैट इज लाइटेस्ट इन द केस ऑफ हाइड्रोजन, right? So this led to this discovery that atom overall is neutral and there are some other positively charged particles. With regard to hydrogen, this led to the discovery of protons. There are some positive particles which are present in this atom, and those positive particles are these anode rays and they would be called as protons. तो एक्चुअल में ये सारी चीज एक्सप्लेन ऐसे की गई थी कि अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें, हाइड्रोजन एटम जो है उसको अगर हमने बहुत सारी एनर्जी दे दी, सो इट गेट्स आयनाइज्ड एज H+ एंड एन इलेक्ट्रॉन. H+ की अगर बात करें, हाइड्रोजन तो बस एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है, राइट? तो H+ की बात करें तो ये तो सिंपली एक प्रोटॉन है. So hydrogen here got ionized as H+, a proton and electron. So naturally electron negatively charged, it got attracted towards anode. Proton is positively charged, it got attracted towards cathode, right? So we say anode rays is nothing but the ionized atom, and in the case of hydrogen it is proton. And obviously from this we can see mass of proton is much more times the mass of electron. It's bulkier than electron. इसीलिए प्रोटॉन को यहाँ ओपनिंग्स चाहिए, इलेक्ट्रॉन को जरूरत नहीं थी. प्रोटॉन बहुत बल्कि है, इट कैन नॉट सिंपली गो थ्रू कैथोड, इसको बहुत सारी ओपनिंग्स चाहिए यहाँ, तभी प्रोटॉन जा सकता है, राइट? और ये हमने हाइड्रोजन के केस में देखा. अगर यही चीज हम हीलियम के केस में देखें, हीलियम को अगर हमने बहुत एनर्जी दे दी तो ज्यादा से ज्यादा कितना आयनाइज हो सकता है? ऐसे आयनाइज हो सकता है, राइट? इससे ज़्यादा तो आयनाइज नहीं हो सकता. तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो तो एनोड की तरह की ओर चले जाएंगे एज कैथोड रेज. तो हमने देखा हाइड्रोजन हो या हीलियम हो,
कैथोड रेज हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, तभी कैथोड रे जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ गैस है। वेराज हाइड्रोजन के केस में एनोड रे क्या था, एक सिंगल प्रोटॉन। कैथोड के केस में एनोड रेज क्या था, दिस इज बेसिकली अल्फा पार्टिकल, ये तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है, इट्स वेरी बल्की, इसको फर्दर ब्रेक तो नहीं कर सकते ना। सो दैट इज वाई in case of helium we have different anode rays as compared to what we have for hydrogen. So that is why I'll say anode rays are dependent on gas, because anode rays are ionized atom, और जैसे जैसे atom change होगा तो उसका nucleus भी change होगा, right? So anode rays indirectly this experiment was responsible for the discovery of protons, because we saw positive charge in the atom. Later on, in order to explain so much mass which was there in the atom, the other particles that were discovered were neutrons. ठीक है, ताकि हम इतना मास जस्टिफाई कर पाए एनोड रेस का, सिर्फ प्रोटॉन के बेस पे वो जस्टिफाई नहीं हो सकता, उसके लिए एक और पार्टिकल होना चाहिए जिसका मास है, एंड दैट इज न्यूट्रॉन. तो मूविंग ऑन, लेट्स लुक एट अदर एक्सपेरिमेंट्स which further solidified this concept of electron, proton and neutron. So there is one more important experiment जो क्लास 10th में, थोड़ा 9th और 10th में ब्रीफली बताया जाता है, रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट. तो उसमें कुछ ऐसा होता है कि देयर इज दिस गोल्ड फॉयल, ठीक है, राइट हियर, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी पॉपुलर रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट. तो इसको हम क्या करते हैं, वी बम्बार्ड दिस बाय alpha rays, like we send lots and lots of alpha rays. ठीक है, alpha rays, I hope everyone knows alpha rays is nothing but helium 2 plus, helium nuclei को हम इसको भेज रहे हैं. तो as with many experiments in chemistry, the first observation we get is that nothing happens. ज़्यादातर रेज जो है वो तो as it is है, जैसा हमने भेजा था बिल्कुल वैसा ही अनडिफ्लेक्टेड. सो ये पहला ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, लाइक नथिंग हैपेंस, ठीक है, जस्ट लाइक नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ. दूसरी ऑब्जर्वेशन है कि बहुत कम रेज, 1 in 1000, दे वर स्लाइटली डिफ्लेक्टेड, राइट. दिस इज द सेकेंड ऑब्जर्वेशन, वेरी फ्यू, लाइक 1 in 1000, लाइक दे वर डिफ्लेक्टेड, ठीक है. So we can say 1 in 1000, like very few ended up being deflected. And the third observation was that extremely few, 1 in a million, even lesser, extremely few जो थे वो पूरे retrace हो गए, right? वो completely retrace हो गए, they were retraced. तो ये 3 फंडामेंटल ऑब्जर्वेशन थी इस एक्सपेरिमेंट की. तीनों ऑब्जर्वेशन की 3 इन्फरेंस है. देखिए, अगर कुछ भी नहीं हो रहा है, राइट, अगर ये हीलियम आयन जो है ये एकदम सीधा ऐसे जा रहा है, अगर हम देखें, हमने डिस्चार्ज ट्यूब में जो चीज़ देखा था, हमने कहा था कि एनोड रेज, जैसे हीलियम के केस में हीलियम आयन वो तभी ट्रैवल कर पाएगा कैथोड से जब कैथोड में ओपनिंग्स होगी. तो अगर हम इस पे वापस आ जाएं तो इसमें भी तो हम वही कहेंगे ना कि अगर हीलियम आयन जो है वो इसके थ्रू स्ट्रेट अवे जा पा रहे हैं तो मतलब इसमें बहुत सारी ओपनिंग्स है. तो इसका इन्फरेंस था कि मोस्ट ऑफ दिस फॉइल और मोस्ट ऑफ द एटम इज नथिंग बट एम्प्टी स्पेस, राइट. मोस्ट ऑफ दिस एटम, ठीक है, मोस्ट ऑफ दिस एटम और एनी एटम इज जस्ट स्पेस. दूसरा ऑब्जर्वेशन जो था वो ये था कि जो एनोड रेज, जो ये अल्फा पार्टिकल्स है और जो अल्फा रेज है, they are getting deflected. So if alpha rays are getting deflected, let's understand how that can happen. अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, राइट, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब वो ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहा है. अगर कोई चीज़ ऐसे डिफ्लेक्ट हो रही है तो मतलब उस पर यहाँ की और इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और ये पॉजिटिव है, वो तभी पॉसिबल होगा ना अगर यहाँ कोई नेगेटिव चीज़ होगी और यहाँ कोई पॉजिटिव चीज़ होगी. नेगेटिव अपनी ओर खींचेगी और पॉजिटिव उसको रिपेल करेगी, राइट. अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव मान लो इकट्ठे होता फिर तो नेट फोर्स 0 होता ना, ये रिपेल करता या अट्रैक्ट करता. तो इसका मतलब कुछ ऐसी चीज़ चल रही है, यहाँ जो चार्ज है वो सेपरेटेड है. तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि एटम के अंदर चार्ज जो है वो सेपरेटेड है, ठीक है. सो आई होप दिस इज क्लियर. तो इसका ऑब्जर्वेशन इज inference is that the charge is separated. तीसरा अगर देखें, अब देखिए इतना अल्फा पार्टिकल जो है, हीलियम न्यूक्लियाई जो है वो रिट्रेस हो रहा है, मतलब वो अगर हम देखें कि वी आर सेंडिंग एन अल्फा रे एंड इट्स गेटिंग कंप्लीटली रिट्रेस्ड. नाउ दिस इज ओनली पॉसिबल इफ देयर इज समथिंग दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड हियर.
वही तो इसको रिपेल करेगा, एंड विच हैज़ अ लॉट ऑफ मास, लाइक दिस कॉन्सेंट्रेटेड चार्ज एंड मास समवेयर इन एन एटम, तभी तो ये हो पाएगा ना। तो इसका इन्फरेंस ये है कि समवेयर इन द एटम there is concentrated charge and mass, which means somewhere in this atom there is this concept of nucleus. Nucleus essentially is protons plus neutrons. So this led to this theory or this inference that inside an atom proton and neutron are present together, बिकॉज ओनली ऑन द बेस ऑफ प्रोटॉन हम इतना सारा मास एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इसका मतलब प्रोटॉन के साथ और भी ज़्यादा मास प्रेजेंट है, एंड दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय न्यूट्रॉन्स। सो वी से इन एन एटम समवेयर देर आर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, एंड दैट इज द कॉन्सेंट्रेटेड मास, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम दिस। सो बेस्ड ऑन दिस व्हाट वी हैड is the Rutherford's atomic model, and Rutherford atomic model was straightforward, इन 3 inferences पे डिपेंड था। तो इस इन्फरेंस को लेते हुए उसने कहा कि एटम में देयर इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, लाइक देयर इज प्रोटॉन, लाइक देयर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रोटॉन्स at a single place, right? Then there is neutrons, like neutral particles, there are neutrons, right? So there are protons and neutrons that are together. Then outside these protons and neutrons, far away from this, there is an electron, right? There's a I should actually draw this at a much smaller size, ठीक है? And we're saying that somewhere here, ठीक है, कि somewhere here what we have is an electron, ठीक है? We have an electron here. So this is electron, and so this is what Rutherford said कि ये जो है ये एक जगह पे concentrated है protons and neutrons, and charge separated है electrons है इससे दूर पे, and most of it is just space. अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इस करंट सिनेरियो में प्रॉब्लम ये है कि ये नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो न्यूक्लियस इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो न्यूक्लियस अगर इसको अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कोलैप्स हो जाएगा ना। सो रदरफोर्ड ने क्या कहा कि रदरफोर्ड ने कहा कि फिर इसमें एक्चुअली ऐसा हो रहा होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है दिस वुड बी ट्रैवलिंग, दिस वुड बी रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, इन अ सर्कुलर ऑर्बिट दिस वुड बी रिवॉल्विंग अराउंड, ठीक है। जस्ट assume this is like a circle, मैंने अच्छे से नहीं बनाया, तो assume this is a circle, so it's saying it's going in a circular orbit। अब हमको ये पता है कोई भी चीज़ अगर सर्कुलर ऑर्बिट में जाती है तो उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है ना, टुवर्ड्स दिस mv²/r होता है, राइट। कोई भी चीज़ अगर, जैसे आपने भी कभी नोटिस किया होगा जब भी आप कहीं टर्न ले रहे होते हैं, राइट, इफ़ यू आर ऑन अ रोड एंड इफ़ यू आर गोइंग ऑन अ रोड, ट्रैवलिंग ऑन अ रोड इन अ कार, एंड आपकी कार सडनली एक लेफ्ट टर्न लेती है, तो आपकी और आप पे एक बाहर की ओर फोर्स आता है। तो जब भी हम एक सर्कुलर मोशन में ट्रैवल कर रहे होते हैं हम पे एक बाहर की ओर फोर्स आता है, कि जब भी इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर वे मोशन ऐसे ट्रैवल करेगा इस पे बाहर की ओर एक फोर्स आएगा, और उस बाहर की ओर फोर्स को बैलेंस ये जो कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस फोर्स को बैलेंस कर देगा, एंड इसका सर्कुलर मोशन जो है वो पॉसिबल हो जाएगा। So this was Rutherford's model. He said electron is going continuously around it's revolving around the nucleus just like Earth revolves around the sun. And जो ये वाला force है which is, अभी हम इसको ऐसे ही कह देते हैं force of rotation, जो है जब हम rotation mechanics पढ़ेंगे तब clear हो जाएगा। जब ये वाला force जो है जब भी circular motion में आता है this would be provided by the Coulombic force of attraction, right? So this was Rutherford's model. Now there's a major problem with this model, and this is essentially जो हम क्लास 9th या 10th तक इतना हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, लाइक दिस इज वेयर वी स्टॉप इन द एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब रदरफोर्ड्स मॉडल में एक प्रॉब्लम है, लाइक देयर इज अ मेजर प्रॉब्लम विद रिगार्ड टू रदरफोर्ड्स मॉडल। उसको अगर हम देखें, द प्रॉब्लम इज दैट देयर इज दिस थ्योरी, ठीक है, अभी हम क्लास 12th में पढ़ते हैं, बट देयर इज दिस थ्योरी, इट्स कॉल्ड क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 जिसने जस्ट अभी क्लास 11 स्टार्ट किया है, फॉर यू दिस वुड बी समथिंग वेरी वेरी न्यू, वेरी एलियन,
तो डोंट वरी अबाउट दैट, अभी इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. बट देयर इज दिस थ्योरी, दिस वैलिड थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, which says that like whenever a charge accelerates, ठीक है, whenever a charge accelerates with respect to another charge, जो कि यहाँ हो रहा है, राइट, यहाँ हम कह सकते हैं ना, वही हो रहा है कि एक चार्ज है इलेक्ट्रॉन, सर्कुलर मोशन तो एक्सेलरेटेड मोशन ही है ना, वेलोसिटी चेंज हो रही है, इट इज एक्सेलरेटिंग विद रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन्स, विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव न्यूक्लियस. सो वेन एवर अ चार्ज एक्सेलरेट्स विद रिस्पेक्ट टू अनदर चार्ज, it loses energy in the form of electromagnetic radiation. ठीक है, तो ये this is too much information for a class 11 student, this is a lot, everything here seems to be new. ठीक है, so don't worry about that. अभी बस इसको ऐसे समझते हैं कि एक थ्योरी है जो वैलिड है कि जब भी एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेट करेगा, इट विल लूज एनर्जी. कैसे लूज एनर्जी करेगा? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. वो क्या होता है उसमें हम बाद में आएंगे, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी विल जस्ट अंडरस्टैंड दैट इट विल लूज एनर्जी, राइट, इट विल लूज, एक रेडिएशन होगी इससे, एंड इट विल एंड अप लूजिंग एनर्जी. अगर इसी एनर्जी कम होगी तो विद टाइम इसकी स्पीड कम होती जाएगी ना. तो जैसे जैसे इसकी स्पीड कम होगी, लाइक जैसे जैसे सर्कुलर मोशन की स्पीड कम होगी, इसकी बाहर जाने की टेंडेंसी है, बाहर वाला फोर्स तो कम होता जाएगा ना. जैसे आप अगर नोटिस करोगे कि जब भी आप कहीं, जब आप मोड ले रहे होते हो गाड़ी में या किसी भी चीज़ में, तो बाहर की ओर फोर्स आता है. अगर आप बहुत स्पीड से मोड लोगे तो बहुत ज़्यादा फोर्स आएगा, अगर आप कम स्पीड से मोड लोगे तो कम फोर्स आएगा. तभी आपने नोटिस किया होगा जब भी हम गाड़ी चला रहे होते हैं या बाइक चला रहे होते हैं, वेन एवर वी हैव टू टेक अ टर्न वी रिड्यूस आवर स्पीड सो दैट दिस फोर्स रिड्यूसेस. बिकॉज अगर ये बहुत ज़्यादा फोर्स लग गया तो वो तो गाड़ी पे बहुत फोर्स लगे ना, गाड़ी कैन टर्न एज वेल. तो वही चीज़ इस पे सोचो, अब इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम होगी तो ये बाहर वाला फोर्स कम हो गया, अंदर वाला फोर्स तो सेम है. तो अगर अंदर वाला फोर्स इफेक्टिवली ज़्यादा हो गया तो धीरे धीरे इट विल स्टार्ट गोइंग क्लोजर एंड क्लोजर टू द न्यूक्लियस until it just collapse into the nucleus. So एनर्जी जैसे जैसे कम होगा, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी तो ये होता है हाफ mv². सो जैसे जैसे एनर्जी कम होगी वेलोसिटी कम होगी, जैसे जैसे वेलोसिटी कम होगी बाहर जाने की टेंडेंसी कम होगी, और जैसे जैसे बाहर जाने की टेंडेंसी कम होगी इट विल एंड अप गोइंग क्लोजर एंड क्लोजर टू द न्यूक्लियस until it just collapses. बट ऐसा तो नहीं होता, इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के बाहर ही होता है, तभी तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की इतनी सारी ऑब्जर्वेशन थी. सो दैट मीन्स that there is something wrong with regard to Rutherford's model, कि जो उसने मॉडल दिया था उसका ये ड्रॉबैक था, राइट. सो दैट मीन्स द वे ही सेज इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअल में वैसा नहीं हो सकता. सो इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन अ डिफरेंट वे. तो now in order to go ahead and understand further atomic structures, first we need to understand all this. मतलब ये डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, but we need to understand this concept of electromagnetic radiation. ये exactly होता क्या है. So in our next lecture, instead of atomic structure, we'll be dealing with this, like what does electromagnetic radiation mean. So right now we just need to understand that Rutherford ने जो भी कहा था कि electron is revolving around the nucleus, that इज वो पॉसिबल नहीं लग रहा, बिकॉज जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा वो अपनी एनर्जी लूज करेगा, और अगर वो एनर्जी लूज करेगा तो वो न्यूक्लियस में कोलैप्स हो जाएगा. तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी लुक एट दिस एंड देन वील मूव बैक टू एटॉमिक स्ट्रक्चर. सो अंटिल देन, गुड बाय.